Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, let's start with the class. Today we will talk about, Sure. uh, shall we? Yes, yes, ma'am. Okay, today we'll talk about how to write a research paper. As we all know that research paper can be written in any language, any field, be it science, commerce, law, any field. But today our focus will be on legal field. I hope you are from legal field. Uh, Actually, ma'am, I'm from marketing background. I just have enrolled in PhD. Okay, So, yes, in which subject you are doing PhD? marketing, marketing. Okay, okay, excellent. I hope this class will help you a lot. Let's start. Yes. Okay. Firstly, why research paper? Why we write research paper? Because it enhances our research skills, and help us to gain knowledge over a specific subject, and way more it helps to improve our writing skills as well. So that is the reason we should write more and more research paper. But there are two terms, that is research paper and research articles. Both are used interchangeably, but there is a difference between the two. Research paper is generally presented in a conference or a seminar. So it's an oral presentation. Whereas when the same paper gets published in a journal, then it is called research article. So research article is a written form, whereas research paper is presented orally. So that is the main difference. But if we talk about the formatting, research work, it remains the same. So let's talk about, we have already covered why research paper. One thing we should keep in mind that when we are talking about research paper, it really helps to improve our API score. If you are a teacher, then you must know API, that is academic performance indicator, and it is one of the factor which is considered and improves our API score. So research paper is important. Now, steps to write research paper. Very important. How to start with research paper? First is to select a topic to write a research paper. It seems easy, but it's very difficult to choose. Whenever we talk about a topic, it needs few essentials our topic should have. First, it must be interesting. The writer must have interest in that topic, because writing a research paper is a lengthy process. If we do not have interest in it, then after some time the topic will get monotonous, and there are high chances कि हम उसको बीच में छोड़ दें, we will not write over it. High chances. So keep in mind that the topic you are selecting must be you are passionate about that topic. Very important. Next is, it must be unique and novel. It should be new. Nobody has taken that topic, because otherwise you will lose the audience. Why other people will listen or read your paper if it is already covered by other people? So it must be unique and novel. Thirdly, the topic must be current. It Just must be one related. question Yes, regarding, please. sorry to interrupt you in No between. problem. Actually, there's one issue regarding the novelty. When we are going through the novel research or the unique research, there's less number of papers regarding that topic. I Then how are we going to do the literature review and how are we going to scroll through the literature because we are not having any base with it, Excellent. right? So Okay, let me cover it. When we are saying unique and novel, see, we need, next point, if you can say, that is availability of literature. When we're talking about research paper, we want content to write, because PhD thesis can't be of 200 pages, 20 pages, and research paper of 200 words. There is a minimum limit which we need to fulfill. And for that, we need content, right? So we always see that there is availability of material. But then it comes in conflict with the second point, that is unique and novel. If the topic is unique, then there is less literature. It happens with me also. When I gave my proposal for PhD, my proposal got rejected 4 times, only on the basis that there is no literature availability. Now, when we are saying it should be novel, how we can find novelty is, आप कोई भी टॉपिक पिक करो, उसमें आपको जो जब आप अपना रिसर्च पेपर लिखोगे, या अगर आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हो, 80% जो कंटेंट है वो इट रिमेन्स द सेम.
आप उसी के बारे में लिखते हो जो बाकी सबने लिखा है, बट 20%, दैट 20% इज द एडिशन ऑफ योर्स। आप उसमें कुछ नया ऐड करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वी आर फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, और इफ वी टॉक अबाउट राइट टू प्रिवेसी, इन लेंथ बहुत मटेरियल अवेलेबल है। या राइट टू रेप लॉज की, अगर हम सॉरी रेप लॉज की बात करें, उस पर इन लेंथ बहुत मटेरियल अवेलेबल है, सबने उस पर कवर कर चुके। लेकिन अगर हम उसके नए एस्पेक्ट को कवर करें, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे क्राइम रेट को कैसे अफेक्ट करेगा, दिस इज समथिंग नोबडी हैज कवर्ड। अगर हम ऐसा टॉपिक लेते हैं, वहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेप लॉज को ही कवर करना पड़ेगा कि अभी तक की क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है उसमें, वो लिखेंगे। लेकिन जो 20% होगा वो हम एडिशन करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि कैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उस क्राइम रेट पे इफेक्ट पड़ेगा और उसको हम कैसे इंप्रूव करते हैं। दैट 20% शुड बी योर स्किल। तो वहां पे वो इश्यू नया होना चाहिए, लेकिन उस इश्यू के बारे में पहले बात हुई होनी चाहिए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अदर एस्पेक्ट्स। उसके बाकी एस्पेक्ट्स पे बात हो रखी हो, लेकिन जो आप पिक कर रहे हो वो अभी तक किसी ने टच ना किया हो। कोई ऐसा टॉपिक ना हो जिसपे आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं की है। अगर आप ऐसा टॉपिक पिक करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में यू फील गुड कि अरे आई एम डूइंग समथिंग न्यू, बट व्हेन इट कम्स टू द राइटिंग पार्ट, देन यू फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू राइट ऑन इट। आर यू गेटिंग? Yes, this happens. Like this was happened with me when I just give the research pre-research proposal Yes. for the enrollment of PhD. This was happened with me because less number of researches has been done in India. So that's what I've faced. Another problem I've faced is reading the research paper. Like? Like whenever I'm reading, like what are the important points I need to consider, like what are the important takeaways I need to consider when I'm reading the research paper, right? Okay. Because yeah, I got a problem into that कि reading कैसे करनी है research paper की how will be going to evaluate at the end कि हाँ these are the key grounds. Okay. Let's cover this topic, because when we talk about the topic, you will get to know how we can pick these things. Sure. Yeah? Okay. Now, availability of literature is the most important point. You can't skip it, because if you skip this point, then you can't write on it. You might research your point, but you can't write in length, because when we talk about research paper, the word limit is 5,000 to 10,000. This is the word limit. So you have to keep that in mind, and same applies on term paper, dissertation, or PhD thesis. So keep in mind that there must be a literature. Next is, now topic can have these qualities, but still the point remains the same, how to pick it. Now we can go for a guide or a professor to help us. You can tell the area of interest ki I want to do in that field, and then they will give you a topic on that field, right? Second is, check research undertaken by the professors, because हमारे जो professors हैं वो भी continuous research कर रहे हैं, already PhD thesis continue है, और हर university की site पे you can see a list of research is going on, so that can help you to find a topic which is relevant and which is current at the same time. Thirdly, you can go for the news. न्यूज विल रियली हेल्प यू टू फाइंड कि कहाँ पे अभी इशू क्रिएट हो रखा है, कौन सा अभी इवेल्युएट होने वाला है. सो न्यूज विल रियली हेल्प यू टू फाइंड अ गुड टॉपिक, राइट? Once the topic is decided, then comes the research part, how to research on it. Now when we talk about research, अब क्वेश्चन आता है कि रिसर्च, जनरली पीपल थिंक दैट रिसर्च स्टार्ट आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ टॉपिक, बट इट इज रॉन्ग. जो रिसर्च है वो हमेशा टॉपिक से पहले स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिटरेचर रिव्यू. व्हेन वी आर सेइंग लिटरेचर रिव्यू, हम उसमें इन लेंथ रिसर्च करते हैं कि जो टॉपिक पे हम कवर करना चाह रहे हैं उस पे अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है या नहीं है, उस पे बाकी लोगों के क्या व्यू पॉइंट है, उन्होंने क्या किस टॉपिक पे बात कर रखी है, किस एस्पेक्ट को टच कर रखा है, राइट? तो हम रिसर्च पे जो है वो पहले ही शुरू कर देते हैं. बट यस, द स्पेसिफिक एंड कंक्रीट रिसर्च जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, वो हम क्या करते हैं, वो फाइनलाइजेशन ऑफ टॉपिक के बाद की जाती है. नाउ व्हाट टू रिसर्च एंड हाउ टू रिसर्च आर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इफ वी से व्हाट टू रिसर्च, if it in every field there are certain parameters which every research paper should fulfill. If we talk about the legal field,
then these parameters like we need to cover the legislative part, constitutional parts, जुडिशियल पार्ट, जुडिशरी का उस पर क्या पर्सपेक्टिव है, जुडिशरी के क्या केस लॉज हैं, क्या टेक रहा है वो, एंड देन द इंटरनेशनल एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी जो लॉज, बाकी कंट्रीज के लॉज हैं, क्या वो उसके कॉन्सोनेंस है या अंगेंस्ट हैं, वी नीड टू कवर दैट पार्ट। इंटरनेशनल यूएन की क्या ट्रीटीज रही हैं, डिक्लेरेशन रही हैं उस पॉइंट पे, वो सब हमें जरूर कवर करना पड़ता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल रिसर्च पेपर। तो वो एस्पेक्ट्स जो है ये हमें जरूर कवर करने पड़ते हैं। दीज आर द पैरामीटर्स विच वी टेक व्हाइल रिसर्चिंग अ पेपर। तो आपको क्या करना है, आप इन पैरामीटर्स के बेसिस पे अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हो, राइट। नाउ हाउ टू रिसर्च, नाउ देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कंडक्ट अ रिसर्च। आप हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हो। जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स आप जनरल जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो देखते हो, उसको रीड करते हो, फॉर एग्जाम्पल बुक्स या फिर आर्टिकल्स, वहां से आप स्टार्ट करते हैं, एंड फ्रॉम दोज सोर्सेज यू पिक द एक्चुअल कंटेंट। लाइक आप रेलेवेंट केस लॉज वहां से पिक करते हो, बुक में रेफर किए जाते हैं, कौन से कंट्रीज ने उस पर लॉ बनाया है वो भी वहां से आपको मिलता है, उस पर कौन सी लॉ कमीशन रिपोर्ट्स आई हैं वो भी आपको वहां से मिलता है, कौन से एक्ट्स कवर हो रहे हैं वो भी आपको वहीं से मिलता है। तो वहां से आप मटेरियल पिक करके क्या करते हो, उनको इन लेंथ रीड करते हो, जो एक्चुअल सोर्स है, फिर आप प्राइमरी सोर्स पे मूव करके उसको रीड करते हो। दिस इज हाउ वी रिसर्च, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिलायबल एंड बोगस सोर्सेस। ऑनलाइन बहुत मटेरियल अवेलेबल है, तो कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से पढ़ने वाला आर्टिकल है, कौन सा नहीं पढ़ने वाला, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें। इसका आंसर लाई करता है, अब हमारे पास बोगस जर्नल्स इतने ज्यादा है कि हम उसकी लिस्ट नहीं बना सकते, लेकिन यस प्रेफर्ड जर्नल्स हमारे पास हैं, आप उनको जरूर रेफर कर सकते हो। सो आपकी प्रायोरिटी जो है वो प्रेफर्ड जो जर्नल्स मैंने मेंशन किया उन्हीं पे रहनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर आपको इन्हीं जर्नल्स पे क्या करना चाहिए, आपको मेंशन करने चाहिए, यही रेफर करने चाहिए अपने रिसर्च पेपर में, बिकॉज इट विल एनहांस द वैल्यू ऑफ योर रिसर्च पेपर। अगर आप बोगस या नॉन रिलायबल आर्टिकल्स ऐड करोगे तो उसकी वजह से आपके जो रिसर्च पेपर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो आप ये लिस्ट जो है रेफर कर सकते हो। फर्स्ट इज यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स। यूजीसी एवरी ईयर एक लिस्ट इश्यू करती है विद रिगार्ड टू द जर्नल्स। अगर वहां उस जर्नल में जो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल है, अगर आप उसके आर्टिकल को रीड करते हैं, उसको रेफर करते हैं, देन इट हैज हाई वैल्यू। सेकेंडली, यूजीसी केयर लिस्ट के बाद आते हैं जो यूनिवर्सिटीज, स्टेट एंड नेशनल यूनिवर्सिटीज अपना एक जर्नल निकालती हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एक जर्नल है, आर्मी स्कूल है उनका एक जर्नल है, एनएलयूज का अपना जर्नल होता है, राजीव गांधी का अपना एक जर्नल है। ये दे माइट नॉट फॉल अंडर यूजीसी केयर लिस्ट बट दे आर वेरी ऑथेंटिकेटेड। सो अगर वहां पे कोई जर्नल रेफर किया हुआ है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स पब्लिश बाय ऑथेंटिक साइट्स, जैसे एससीसी हो, लाइव लॉ हो, या फिर हम कह देते हैं जे स्टोर हो, सेज, ये बहुत ऑथेंटिकेटेड आर्टिकल्स हैं, साइट्स हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं, राइट। अब बात आ जाती है जो जनरल आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, आप इनके व्यू पॉइंट को कभी कंसीडर मत करिए, डोंट गो फॉर इट, बिकॉज आपको नहीं पता वो किसने लिखा है, हाउ रिलायबल द आर्टिकल इज। बट आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप अपने सोर्सेस पिक कर सकते हैं। सोर्सेज कैसे पिक करेंगे, आप वहां पे देखेंगे कि कौन से केसेस को रेफर कर रखा है, कौन सी बुक्स रेफर कर रखी हैं, और कौन सी रिपोर्ट्स को उन्होंने मेंशन किया है। आप वो सोर्सेस नोट डाउन करके आप प्राइमरी सोर्स पे तक पहुंच सकते हैं। सो डोंट रेफर दीज आर्टिकल्स इन योर रिसर्च पेपर बट यूज देम फॉर इन योर फेवर टू फाइंड द प्राइमरी सोर्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज once your research is done then comes the writing part, but question arises, when will you come to the conclusion that your research is done? Because research is like a pool, जहां पे आप जितना उसको देखोगे उतना वो बढ़ता जाएगा। तो रिसर्च कब हमें होता है कि अब रिसर्च नहीं करनी, अब हमें लिखना है। इसका रूल होता है कि आप हमेशा जो लेटेस्ट जर्नल, लेटेस्ट आर्टिकल, लेटेस्ट बुक को रीड करिए, उसके बाद आप जो पुराने आर्टिकल्स हैं उन पे जाइए। इससे क्या होगा, आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव हो जाएंगे, बिकॉज जो लेटेस्ट आर्टिकल या लेटेस्ट बुक होगी वो पुरानी कंटेंट जो उसको ऑलरेडी कवर कर लेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आप क्या करेंगे,
जब आप आर्टिकल्स को रीड करते हैं इन एस्पेक्ट्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट, आप पर्टिकुलर पार्ट वाइज जब आप उसको रीड करते हो, यू विल फाइंड आफ्टर सम टाइम रेपिटेशन होने लग जाती है। जब आपको लगे कि ये रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है, दैट इज द टाइम यू नीड टू स्टॉप। आप वहां पे रुक जाइए एंड देन कम्स द स्टार्ट एंड देन स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट। उससे क्या होगा, जब आप लिखेंगे अगर आपको वहां पे कोई कमी लगती है, देन यू कैन अगेन रिसर्च ऑन इट। अदरवाइज अगर आपके रिसर्च कंप्लीट होगी तो आप उसको कंप्लीटली लिख सकते हैं, लेटर ऑन देखिए। अगर रेपिटेशन स्टार्ट हो गया वहां पे रुक जाइए, राइट। एंड वन मोर पॉइंट विद रिगार्ड टू द रिसर्च, आप जितने मर्जी आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, बट वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड, दैट इज टू रीड द बेयर प्रोविजन। जो लीगल प्रोविजन है, बेयर एक्ट्स हैं, उसको जरूर रीड करिए, खुद उनको एनालाइज करिए। बिकॉज जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करेंगे, आप अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, यू कांट गिव द ऑथेंटिसिटी टू योर रिसर्च पेपर। आप उसको रियल कंटेंट नहीं दे पाएंगे। आप क्या करेंगे, आप बाकी के ही व्यूज को, बाकी लोगों के व्यूज को ही रिक्रिएट करेंगे। तो अगर आप कुछ न्यू यूनिक देना चाहते तो आपको जरूर क्या करना चाहिए, जो लॉज हैं उनको खुद से रीड करके एनालाइज करना चाहिए। ओके, नाउ कम्स द स्टार्ट राइटिंग पार्ट। थर्ड स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। First, we need to know the format. What is the format of a research paper? Research paper is divided into three parts: introduction, main body, and the conclusion and findings. When we say the in main body, it covers all the aspects जो हम ऊपर cover करके आए हैं। लॉ कवर करना है, जुडिशियल एस्पेक्ट कवर करना है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट कवर करना है, दैट इज द मेन बॉडी। और अगर आप कोई स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात करें एंड यू आर टॉकिंग अबाउट with special reference to state of Haryana, in that case the last point will be topic specific, हरियाणा स्टेट के क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, वो कवर करेंगे। नाउ दैट इज द मेन बॉडी। इफ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ही लिसनर या जो आपका रीडर है वो डिसाइड करेगा वेदर टू कंटिन्यू विद दैट पेपर और नॉट, राइट। सो इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव जरूर होना चाहिए। वो कैसे होगा, आपको तीन चीजों का आंसर करना है जब हम इंट्रोडक्शन की बात करें। तीन चीजें क्या हैं, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। व्हाट सेज व्हाट यू आर गोइंग टू कवर इन दैट पेपर, आपका टॉपिक क्या है। व्हाट में आप बताएंगे आपका टॉपिक क्या है, एंड फॉर दैट यू कैन यूज डेफिनेशंस, गिव अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दैट टॉपिक, then it will help you to make it more interesting. Second is when, सॉरी वाई आएगा, यहाँ टाइपिंग एरर है। वाई यू पिक दिस टॉपिक। जब भी आप किसी टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिखते हैं तो कोई इंसिडेंट हुआ होगा, कोई डाटा आपने रीड किया होगा, कोई करंट इशू रहा होगा जिसकी वजह से आपने वो टॉपिक पिक किया है। नाउ मेंशन दैट बिकॉज इट विल मेक योर इंट्रोडक्शन मोर इंटरेस्टिंग। थर्ड इज हाउ। हाउ में आप एक्सप्लेन करेंगे हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद द टॉपिक, आप क्या क्या कवर करने वाले हैं पूरे पेपर में। सो इससे क्या है, रीडर को एक इंसाइट मिल जाता है कि पूरे पेपर में अब और क्या है। इट विल हेल्प हिम टू टेक अ डिसीजन टू रीड इट और टू लिसन इट और नॉट, राइट। नाउ दिस इज द जनरल गाइडलाइन विद रिगार्ड टू द इंट्रोडक्शन। बट अगर हम स्पेसिफिक बात करें, then there are certain points which you need to mention while writing an introduction. Before that I was to say कि अगर ये क्लास एंड हो जाती है, you can rejoin with the same ID and password. Okay, now let's cover what are the specific points which you need to cover. First is the hypothesis. What is hypothesis? Hypothesis क्या है, एक हमारी assumption है। अब आपने कोई भी टॉपिक पिक किया, आप उसके एक एजम्पशन के साथ लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पोल्यूशन के रिगार्डिंग लिया है कि जो पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी बढ़ रहे हैं, दिस इज योर एजम्पशन। आप ये नोशन लेके चल रहे हैं कि ऐसा होता है। इट माइट नॉट बी ट्रू, वो शायद बाद में गलत प्रूव हो जाए, लेकिन आपने स्टार्टिंग में जब आपने पेपर लिखना शुरू किया आप इस एजम्पशन के साथ थे, तो दैट विल बी योर हाइपोथेसिस। जितनी एजम्पशंस आप लेके चल रहे हैं वो हाइपोथेसिस कहलाता है। आपको हाइपोथेसिस जरूर मेंशन करना है। देन कम्स द रिसर्च गैप। रिसर्च गैप क्या होता है कि आपने ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू किया, आपने पढ़ा कि उस टॉपिक पे बहुत लोगों ने लिखा है,
अब आपको जो टॉपिक है वो यूनिक होना चाहिए। तो आप बताओगे कि लोगों ने इस टॉपिक पे रिसर्च कर ली है, लेकिन ये एक एस्पेक्ट है जो अभी तक किसी ने टच नहीं किया, ये यूनिक गैप, ये गैप रह गया रिसर्च में, क्योंकि इस पे अभी तक कोई बात नहीं कर पाया है। सो आई एम गोइंग टू कवर दैट पॉइंट। तो रिसर्च गैप में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में लिटरेचर रिव्यू बताकर उसका गैप हाईलाइट करना है। नेक्स्ट कम्स द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में आप कवर करोगे कि आप जो गैप है जिसको आप हाईलाइट कर रहे हो, उसको पूरा करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हो। You are going to talk about international aspect, you are going to talk about Indian aspect, are you going to talk about judicial cases, whatever you are going to do, you will cover in that research objective. And same with the scope, आप उसको हाईलाइट करोगे कि आप अब इसमें क्या क्या कवर करने वाले हो। दिस विल बी द इंट्रोडक्शन। ये जो लास्ट के 4 पॉइंट्स है, यू नीड टू हाईलाइट दिस पॉइंट। आपको ये इंट्रोडक्शन में लिखने ही होंगे, बिकॉज इट विल हेल्प द रीडर टू नो कि आपने कौन से गैप पे आप टारगेट कर रहे हो और कैसे उसको स्टडी करने वाले हो। राइट, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड देन कम्स द मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या है, हमने डिफरेंट पार्ट्स किए हैं कि लेजिस्लेटिव पार्ट है, जुडिशियल पार्ट है। आप किसी भी पार्ट पे लिखिए, जरूरी नहीं है कि आपने इंट्रोडक्शन ही लिखना है पहले या मेन बॉडी लिखनी है। आप किसी भी पार्ट को पिक कर सकते हैं। आप चाहे पहले इंट्रोडक्शन लिख लीजिए फिर मेन बॉडी पे आ जाइए, या पहले मेन बॉडी लिख लीजिए फिर इंट्रोडक्शन लिखिए। मेन बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स आप डिवाइड करते हो, तो आप किसी भी एक को पिक करके आप लिख सकते हो। बट मेक श्योर व्हेन एवर यू आर पिकिंग वन पॉइंट, वन पार्ट, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट अगर पिक किया है, तो आपको उसको इन लेंथ कवर करना है। इन लेंथ कैसे, आप उसकी रिसर्च जो आपने की उसको पिक करोगे, रीड करोगे और उस पर लिखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या क्या है। अब आप जब रीड कर रहे हो, रीड एंड राइट दोनों कर रहे हो, उसमें आप क्या कुछ एनालिसिस भी कर रहे हो, साथ में आपके माइंड में कुछ एनालिसिस भी आ रहा है कि अरे इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसमें ये फाइंडिंग है, इसमें ये फाइंडिंग है। आप उन एनालिसिस को, उन फाइंडिंग्स को क्या करोगे, सेपरेटली लिखोगे। बिकॉज एनालिसिस जो है कभी भी मेन बॉडी में कवर नहीं होता, वो कंक्लूजन या जो हम फाइंडिंग्स कहते हैं एंड में कवर होता है। तो आप उसको भी साथ साथ लिखोगे। साथ साथ लिखने से क्या होगा, आपका कंक्लूजन वाला जो पार्ट है वो भी साथ में कवर हो जाएगा, और इससे आपका टाइम एंड एनर्जी दोनों ही सेव होंगे। बिकॉज अगर आप सोचोगे कि कंक्लूजन में एंड में लिखूंगा, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से सारा रीड करना पड़ेगा, दोबारा से फाइंडिंग्स देखनी पड़ेंगे और दोबारा लिखना पड़ेगा। सो इट्स बेटर जो भी आप पार्ट कवर कर रहे हो उसके साथ साथ उसकी जो फाइंडिंग्स है वो सेपरेटली आप लिखते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू प्रिवेसी जो है वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, राइट। अब आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या फाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, इट बिकम्स अ फंडामेंटल राइट, बट क्या है ये दोबारा फ्यूचर में चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, तो इसको एक्सप्रेसली इंकलकेट करना चाहिए। तो आपकी फाइंडिंग क्या होगी, राइट टू प्रिवेसी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट, बट इट इज येट नॉट expressly inculcated in the Constitution of India. So there are high chances that it can be challenged in future. This is your finding. ये आपका कंक्लूजन निकाला आपने उसको पढ़ के। अब इसकी सजेशन भी आप साथ ही में लिख देंगे। आपकी सजेशन क्या होगी इस पे, कि इसको क्या किया जाए, एक्सप्रेसली इंकलकेट किया जाए, राइट। सो आप उसको भी सेपरेटली लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपकी मेन बॉडी और कंक्लूजन जो है साथ में प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। नाउ जब आपने पूरा लिख लिया है, अब आप किसी भी पार्ट को पहले लिख रहे हो, किसी को पार्ट को बाद में लिख रहे हो, तो कंक्लूजन में ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो कंक्लूजन है वो हमेशा क्या होता है, इन ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर एज एन, जैसे आपका पेपर प्रोसीड करेगा इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक, उसी सीरीज में आपका कंक्लूजन होना चाहिए। सो इफ यू आर कवरिंग द लेजिस्लेटिव पार्ट फर्स्ट, तो उसका जो कंक्लूजन है वो पहले आएगा। देन कम्स द जुडिशियल पार्ट, उसका कंक्लूजन लेजिस्लेटिव पार्ट के बाद वाले कंक्लूजन में आएगा। सो इट मीन इट मस्ट बी इन ऑर्डर, दैट इज द की पॉइंट। ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। सेकेंडली, जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हैं उसमें कभी भी कोई न्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस मत करिए, नेवर एवर, राइट। थर्ड इज, अब आप मेन बॉडी में भी लिख रहे हैं और कंक्लूजन भी लिख रहे हैं, कभी भी देयर आर हाई चांसेस ऑफ रेपिटेशन, ऐसा हो जाता है, बट इंश्योर करें, ध्यान रखें लिखते टाइम कंक्लूजन कि मेन बॉडी और कंक्लूजन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर रेपिटेशन होगी तो रीडर विल नॉट लाइक योर पेपर, वो कहेगा मोनोटोनस है, बार बार रेपिटेशन हो रही है, सेम ही चीज कही जा रहे हैं, तो वो आपके पेपर को
उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. सो मेक श्योर कि जो कंक्लूजन है उसमें रेपिटिशन ना हो. These are the points which we need to keep in mind while writing the main content part of the paper. Now, next comes, after writing your paper, then comes the footnoting. Footnoting क्या है और क्यों की जाती है? फुटनोटिंग जब भी हम बात करते हैं उसके साथ एक वर्ड आता है एंड नोट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? नाउ फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड फुटनोटिंग की क्यों जाती है. फुटनोटिंग करने के दो रीजंस हैं. फर्स्ट इज द एथिकल रीजन. एथिकल रीजन क्या है कि अगर हमने किसी का कोई व्यू पॉइंट अपने पेपर में रेफर किया है, उसकी कोई बात को हमने अपने पेपर में यूज किया, जरूरी नहीं है व्हेन आई एम सेइंग यूज मींस आपने कॉपी पेस्ट किया है. नो, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, लेकिन वो आपका व्यू नहीं है, वो किसी और का व्यू है. देन हमारी ये एथिकल बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मिस्टर ए ने अपने पेपर में ये बात की थी और आई एम यूजिंग द सेम थिंग. मैं उसके पेपर के बेसिस पे ये बात कह रहा हूं. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. सो फर्स्ट इज द एथिकल रीजन. सेकेंड इज, आप कोई एक्सप्लेन करते हो, आपने पेपर लिख रहे हो, उसमें कोई ऐसी पॉइंट है जो आपको मेंशन तो करना है, लेकिन आप उसको मेन पेपर में मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या आ जाएगा, फ्लो बिगड़ जाएगा पेपर का. फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि राइट टू प्रिवेसी जो है, दो केसेस में उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ केसेस जहां पे, ऑफ स्मॉलर बेंचेस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को रिकॉग्नाइज किया था. अब आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ केसेस. अगर आप उसमें केसेस का नाम डालोगे तो वो ऐसा लगेगा, फ्लो नहीं बनेगा बात का. लेकिन रीडर इज इंटरेस्टेड टू नो कि वो कौन से केसेस थे. और ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, फुटनोटिंग में उन केसेस को ऐड कर देते हो. सो फुटनोटिंग में अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन डालनी है, एक्सप्लेन करना है, किसी पॉइंट को एलेबोरेट करना है, तो आप फुटनोटिंग में डाल देते हो. दीज आर द टू मेन रीजंस कि हम फुटनोटिंग देते हैं. यही दो रीजंस जो हैं एंड नोट्स पे भी अप्लाई होते हैं. सेम जैसे हम फुटनोटिंग करते हैं वैसे ही हम एंड नोट्स लिखते हैं. बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, जो फुटनोटिंग है वो पेज के एंड में आती है, पेज के एंड में आती है, और जो एंड नोट है वो रिसर्च पेपर के एंड में आता है. जब पूरा रिसर्च पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद एंड नोट्स आते हैं. नंबरिंग आप पेपर में करते हो 1 2 3 4, और अपीयर वो लास्ट में होते हैं. राइट, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फुटनोटिंग एंड एंड नोटिंग. आई थिंक क्लास इज गोइंग टू एंड इन अ मिनट. तो हम जो नेक्स्ट है वो रीज्वाइन करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद इट. आई एम गोइंग टू एंड द क्लास एंड आई विल ज्वाइन इट अगेन, start again, and please join it.